In the last class, I discussed 5 or 6 important properties of determinants, and these properties really help us to expand the determinant or get the value of determinant without expanding. Let's quickly recall those properties. Determinant of A is same as the determinant of its transpose. Look at the examples. If I interchange the rows and columns, means if I take its transpose, even if I calculate its value, it remains the same. So that is the first simple property. Next property, if we interchange any two rows or columns, let's say I interchange row 2 and row 3, the value of determinant changes its sign. तो ये मेरा रो 2 था, ये रो 3 था, बस इन दोनों को इंटरचेंज किया था, the value of determinant changes. If any two rows are identical, the value of determinant is 0. So one can easily observe अगर कोई भी दो rows, not necessarily first and third, say first and second, अगर वो भी same होती हैं तो value of determinant vanishes. Even if any two rows are proportional, then also the value of determinant is 0. And next property जो हमने किया था, if any row is say multiplied by some scalar value k, I can take out this k common. So the answer will be k times the value of this determinant. Next is, if any row or column is expressible as this sum, it can be get splitted as a sum of two different determinants. The same is applicable, ये तो रो में दिखाया है, the same is applicable for any columns as well. और सबसे important property जो हमारी हम use करेंगे throughout, if this is say some standard determinant, and say for example if I apply this property कि रो 1 में क्या चेंज करा, रो 1 प्लस k टाइम्स रो 3, किसी और रो का स्केलर मल्टीप्लायर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नई डिटर्मिनेंट आएगी, द वैल्यू विल बी दी सेम. So both the determinants will have the same value. So these are our basic properties, and using these properties, now let's consider few questions from NCERT textbook exercise 4.2. Using properties of determinants and without expanding, that would be the common statement for all such questions. You have to prove this result. The method is not unique. There may be 2-3 different possible approaches which may comes to your mind. So if I consider LHS, so that is a simple determinant, x a, x plus a, y b, y plus b, z c, z plus c. So as I already have mentioned, there are number of ways. First way क्या mind में आ सकता था, x y z, a b c, and थर्ड कॉलम के अलोंग मैं इसे स्प्लिट कर देता हूं इस कॉलम के अलोंग. तो क्या रूल रहा था, ये कॉपी एज इट इज, यहाँ ए बी सी, और इधर भी आ जाएगा ये वाला ए बी सी. ऑब्जर्व दैट हियर C1 is identical with C3. If two columns are identical, the value of determinant is 0. Second and third column are identical, the value of determinant is 0, which proves the result. एक और मेथड चलो मैं बता देता हूं जो आप इजीली सोच पाएंगे.
let me apply C1 goes to C1 plus C2. तो चेक करिए क्या हो जाएगा। C1 ये होता है, ये C2 है। C1 को मैंने चेंज कर दिया C1 प्लस C2, इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दिया C1 में y प्लस बी, और ये हो गया z प्लस सी, और बाकी एज इट इज ए बी सी, एंड दिस इज x plus a, y plus b, z plus c. Now one can easily observe first and third column are identical. The value of determinant is 0. You could have used some another way. C3 goes to C3 minus C1, or C3 goes to C3 minus C2. उससे भी डायरेक्ट सिंगल स्टेप में you will get your required answer. Yes, लविश, मैंने अब नोट करा आपका मेथड, राइट, दैट्स ओके। तो आप इसमें आप अपने आप होमवर्क में कैसे ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही इंस्टेड ऑफ दिस आप सोचिए C3 गोज टू C3 माइनस C1, और अगर आप चलो C3 गोज टू C3 माइनस C2, दे विल ऑल्सो वर्क। Again, without expanding and using properties, you have to prove this value as 0. तो आप चेक करिए, I will consider LHS. Look carefully. वैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरा क्या गया है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बट एनीवे, इसका मतलब क्या हो गया, अगर सिमेट्रिक है तो जो मैं रोज के अलोंग सोचूंगा, द सेम विल बी एप्लीकेबल अलोंग द कॉलम्स एज वेल, राइट भानु। सिंपल ऑपरेशन अगर आपने चलो कहा है, मैं क्या अप्लाई कर दूं, R1 गोज टू R1 plus R2 plus R3, or as I am mentioning in my last class, certain golden rules. So this is one of the golden rule initially which we generally prefer. आप तीनों रोज को ऐड करके देख लो, या तीनों कॉलम्स को ऐड करके देख लो, पॉसिबली यू विल गेट जीरोस, या कुछ इजी फैक्टर आ जाए जो तीनों रोज में से कॉमन बन रहा हो। एनीवे, चेक करिए, रो 1 में मैंने चेंज करा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ रो 1 में R1 प्लस R2, ये R2 का हो गया, और ये R3। सिमिलरली इसके अंदर ये तीनों ऐड कर दिए, और लास्टली यहाँ रो 1 में C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C. There is no change in other rows, copy them. One can easily note what happened in the numerator. Oh, sorry, in the first row, A will get cancelled out, B say B cancel, C says C. Same way here, 0, 0, 0. Baki as it is. But there is a simple rule, if any row or if any column consists of all zeros, the value of determinant vanishes. Your required answer. Yes. You may try out the same question in your homework, और वहां अप्लाई करके देखना C1 goes to C1 plus C2 plus C3. As already observed, this is a symmetric matrix. तो जिस तरह का ऑपरेशन रोज में वैलिड था, similar will be definitely valid for the columns as well.
अब की बार क्या होगा, कॉलम 1 जो है आपका C1 वो 0 0 0 बन जाएगा। Using properties of determinant and without expanding you are to prove this. Look at the numbers जो यहाँ आपको दिए हैं 2 7 and 65, 3 8 75, 5 9 and 86. What is a relationship? अगर मैं रो वाइज थोड़ा सा समझना चाहूँ तो अगर आप ध्यान से देखें, इस रो को 9 से मल्टीप्लाई करा 63 आ जाएगा, और ये ऐड कर दिया आ गया 65। सेम वे सोचो 9 से इसे मल्टीप्लाई करा 72 प्लस कर दिया 3, आई एम गेटिंग दिस नंबर ओनली 75। एंड सिमिलरली 9 इंटू 9 81 और प्लस 5 कर दिया 86। सो ये पहला स्टेप जो है ये कॉमन, लॉजिकली तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। तो जैसा अभी भानु और लविश में देख रहा हूँ इन्होंने थोड़ा सा हिंट लिखा है, तो अब आपकी चॉइस है। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं अगर इसमें R3 में चेंज कर, सॉरी कॉलम 3 में C3 में क्या चेंज कर दूं, C3 माइनस 9 टाइम्स कर दूं C2 और ऐड कर दूं C1। यही तो मैंने सोचा था। और रो में नहीं, ये कॉलम वाइज हो रहा है, एक बार आप चेक करिए भाई। तो कॉलम में मैंने पूरे में चेंज करा है, दिस इज माय थर्ड कॉलम। तो थ्रू आउट थर्ड कॉलम में मैंने ये अगर रूल लगा दिया, सोचिए क्या इंपैक्ट होगा। यहां तो चलो देर इज नो चेंज इन फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड कॉलम मैंने क्या करा है, C3 माइनस 9 टाइम्स C2 एंड प्लस कर दिया C1। सेम वे C3 माइनस 9 टाइम्स C2 प्लस C1। यहां C3 यही आ गया, माइनस 9 टाइम ये C2 वाला एलिमेंट हो गया और प्लस कर दिया C1। वन कैन इजीली नोट यहां कितना आ जाएगा, 0 0 0। थर्ड कॉलम टोटली 0 बन गया, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सर यहाँ पे माइनस आएगा, C3 माइनस C1 कर सकते हैं, एक मिनट। तो उससे ठीक है, सी उस केस में आपको 2 स्टेप में लिख के दिखाना पड़ेगा। अगर आपने पहला ऑपरेशन सोचा C3 गोज टू C3 माइनस C1, तो देखो उससे फर्क क्या पड़ेगा, ये आ गया ये, और अब C3 माइनस C1 यहाँ आ जाएगा 63 72 एंड यहाँ आ गया 81। और अब अगर आप ध्यान से देखें, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 3 है। C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब 7/63 देखो, 8/72 देखो, या 9/81, तीनों रेशो सेम आ रही है। तो इफ एनी टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, again the value of determinant is 0. So as I already have mentioned, सिर्फ एक वे नहीं है, देयर आर मल्टीपल वेज। अब आप जब 2-4 और क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा सर। दूंगा। यस सर मैं यहाँ पे कह रहा था सर C3 ऑपरेशन में C3 माइनस 9 C2 माइनस C1 आना चाहिए सर। क्यों आएगा, माइनस में नहीं हो रहा, मैंने प्लस करा है, एक मिनट। माइनस, ओ यस ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल 65 और माइनस आ रहा है 63, यस ठीक है, थैंक यू।
हाँ, ये माइनस हो रहा है तभी वो सारा कैंसिल हो रहा था, ठीक है, यस यू आर राइट, तभी वो 0 0 0 आ रहा है, अदरवाइज दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव वे है। चेक आउट दिस क्वेश्चन। अभी सिर्फ ध्यान से अगर आप देखते हैं, आफ्टर आई सॉल्व से 5 6 क्वेश्चंस ओनली, तब और कहीं बेटर क्लियर होना शुरू होगा कि कौन सा ऑपरेशन और क्यों लगाना है, कब लगाना है। दैट इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग, वो प्रैक्टिस के साथ ही बनेगा। लुक एट एलएचएस। पहले तो ये चलो पूरा लिख लेते हैं। व्हाट आई विल डू, C3 में ब्रैकेट ओपन करो, मीन्स दिस इज सिंपली AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB, और फिर क्या कर दो, C2 गोज टू C2 प्लस C3। आप C3 में भी ये चेंज कर सकते थे। C2 गोज टू मैंने क्या करा है, C2 प्लस C3, इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दो। सिस्टमैटिक वे में लिखूं तो यहाँ क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, चेक कर लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA, और ये एज इट इज कर दिया कॉपी। यस, सो वन कैन नाउ इजी ऑब्जर्व क्या हो गया। अब की बार क्या हुआ है, C1 and C2 are proportional, C1 and C2 are proportional, hence the value of determinant is 0। इसी को दूसरे वे में मैं कैसे कह सकता था, कॉलम 2 में से AB प्लस BC प्लस CA मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर। अगर AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आएगा तो यहाँ पूरे में बच जाएगा 1 1 1, और फिर मैं कह दूंगा C1 and C2 आर सेम, दे आर आइडेंटिकल, hence the value of determinant will be 0। परफेक्ट। मैं चैट में भी पढ़ रहा हूँ कईयों के मेथड्स, दैट इज ओके। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और वे भी है, R1 goes to R1 minus R2, R2 goes to say R2 minus R3। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 1 1 1 दिखाई दे जाए तो एक एज अ गोल्डन रूल जनरली हम कहते हैं आप दो जीरोस बना दो। तो मैं ये रूल भी यहाँ लगा सकता हूँ, बट when you apply this rule and solve it, you will find this method will be calculative। तो जनरली तो ये क्वेश्चन को इजी बनाता है, बट यहाँ पर विद प्रैक्टिस एक आइडिया लगेगा कि सिंपली अगर मैंने ये रूल लगा दिया, ये वाला, तो आराम से सॉल्व हो रहा है विद इन 2 स्टेप्स। बट अगर मैं ये रूल लगाता हूं, इट विल बी लिटिल बिट कैलकुलेटिव, दो आई विल गेट माई करेक्ट आंसर। तो ऑल्टरनेटिव जो मैंने अभी आपको हिंट दिया है, ट्राई आउट इन योर होमवर्क, बट एग्जाम में नहीं लगाएंगे। एग्जाम में सिंपल अप्रोच आपको बता चुका हूं, बट एक ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में अराइज होता है कि जब सर कह रहे हैं गोल्डन रूल है 1 1 1 लिखा हो तो हमेशा 2 0 बना दो, तो वो मेथड 99% क्वेश्चंस में एक्चुअली वर्केबल है। वर्केबल इसमें भी है, बट अननेसेसरली वो कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी, इसीलिए हेयर आई प्रेफर दिस ऑल्टरनेटिव अप्रोच। कहीं भी कोई डाउट आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क।
स्किप्ड 1 और 2 क्वेश्चंस इन बिटवीन, वो मैं बाद में कवर करूंगा, पहले सिंपल टाइप के ले रहा हूं। तो डायरेक्टली चेक आउट दिस क्वेश्चन. You have to prove this result. Prove that the value of this determinant is 4a square b square c square. देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस डिटर्मिनेंट में 4 एज अ फैक्टर रहा होगा प्रेजेंट, a स्क्वायर कहीं ना कहीं रहा होगा, b स्क्वायर एज अ फैक्टर एंड c स्क्वायर एज अ फैक्टर. तो माय टास्क इज टू लोकेट दैट फैक्टर. वो कहां से कॉमन मिल रहा है. So if there is any element which is common, first step मेरा वही रहेगा, I will take that element common. So if you note carefully, look at, पहले मैं रो वाइज देखता हूँ. दिस इज माई रो वन. बहुत ध्यान से देखना. रो वन में से क्लियरली a is common. Simultaneously look at रो टू. रो टू में से we can easily observe b is common. Look at रो थ्री. रो थ्री में से वन कैन इजीली ऑब्जर्व C इज कॉमन. तो जब मैंने ये ABC कॉमन निकाल दिए, रो वन में से सिर्फ A निकाल दो तो क्या बचेगा, -A. यहां से A बाहर निकाला है. रो टू में से लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, उससे और बेटर क्लियर होगा. रो टू में से मैंने B कॉमन निकाला था तो B निकाल दो. आई विल गेट दिस. फ्रॉम रो थ्री C बाहर निकाल दो. A, B एंड -C. तो यहां पर अब आपको ये रीजन आउट करना है. टेकिंग A, B एंड C कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 respectively. राइटिंग दिस इज इंपॉर्टेंट. ये ध्यान रखिए. हो सकता है एग्जामिनर हाफ मार्क डिडक्ट कर ले अगर आप ये नहीं रीजन आउट करते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं, और इनफैक्ट दे विल डिडक्ट. नाउ नोट केयरफुली. पहले मैंने रोज में फोकस किया था, अब आप जरा कॉलम वन में फोकस करिए. C1 में ये ABC तो पहले से ही थे, राइट. अब इस कॉलम वन में से A कॉमन, कॉलम वन में से A कॉमन, कॉलम टू में से B कॉमन, और कॉलम थ्री में से C कॉमन. कॉमन आ गया तो सोचिए ध्यान से. फर्स्ट कॉलम में से A बाहर गया, -1, 1, 1. कॉलम टू में से B निकाल दो, कॉलम थ्री में से C. ये बचेगा. राइट. तो C2 and C1 are proportional. No, they are not proportional. आप चेक करिए समृद्धि. Excuse me, sir. Yes. So even here we need to reason out that from C1, C2 and C3 respectively we are taking A, B Yes, and of C. course. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Yes, that we need to mention. ये बहुत important है. फिर वो ये मार्क नहीं तो डिडक्ट हो जाएगा. तो टेकिंग A, B, C कॉमन अब की बार मैंने कहां से लिया है, फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली.
तो बाहर तो आ गया ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब मैं एक ऑपरेशन यहां देखो लगा देता हूं, आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, बट इफ यू अप्लाई सिंपली r1 गोज टू r1 प्लस r2, r2 goes to r2 प्लस r3, इससे होगा क्या, r1 में r1 प्लस r2 ऐड कर दो, 0 0 2, इन दोनों को ऐड कर दिया, और r2 में कर दिया r2 प्लस r3 2 0 0, ये 1 1 माइनस 1। चेक करिए, एट अ टाइम आप सिर्फ 2 रोज में एट द मोस्ट चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कहे कि R3 गोज टू R1 प्लस R3 कर दूं मैं, दैट इज एब्सर्ड, उससे गलत कंक्लूजन आ जाएगा। ये याद रखिए, सिंगल स्टेप में एट द मोस्ट आई कैन अप्लाई ओनली 2 चेंजेस, राइट। आप चेक करिए यहां जब हम गए ना विदाउट एक्सपेंडिंग, तो मैंने अभी तक कहीं भी एक्सपेंड नहीं करा है। अब इस चीज को लास्ट स्टेप में तो आपके पास ऑफ कोर्स कोई ऑप्शन नहीं बचेगी मेरे पास। जब मैं इसको रो 1 के अलोंग देखूंगा, तो आपको यहाँ तो एक स्टेप तो एक्सपैंड वाला कहना ही पड़ेगा कि अप्लाई किया है। ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0, एक्सपैंड कर दिया यूजुअल मेथड से, लास्ट स्टेप में करना ही रहेगा। सो ये आ गया 4 a square b square c square which is equal to RHS, hence proved। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वेरी हो सकती है, हो सकता है कई बार फिर ये ना लिख कर दे विदाउट एक्सपेंडिंग, ये कॉमन होगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दिस रिजल्ट, क्योंकि लास्ट स्टेप में तो एक बार तो आपको सिंपल एक्सपेंशन कहो या एक सिंपल प्रॉपर्टी, वो हमें लगाने ही रहेगी। प्रॉपर्टी के बिना अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, इट विल बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव। तो आंसर तो बिल्कुल आएगा, बट ये क्लियर है आपको प्रॉपर्टीज को ही यूज करना है। चेक दिस आउट। दिस इज माय 3 मार्कर। LHS कंसीडर किया। देयर आर 2 ऑब्जर्वेशंस जो विद प्रैक्टिस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सब कर पाएंगे। व्हाट आर दोस 2 ऑब्जर्वेशंस? फर्स्ट, फॉर माय गोल्डन रूल 1 1 1 1 वो लिखा हुआ है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, लुक एट द आंसर। पहला ही मेरा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक एट द आंसर। आंसर में मुझे पता चल रहा है कि a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a दे आर प्रेजेंट एज अ फैक्टर। तो पक्की बात है कहीं ना कहीं से a माइनस बी LHS में कॉमन आ रहा होगा। Similarly for b minus c and c minus a. How shall we proceed? 1 1 1 दिखा, as my golden rule says, आप इसे और इसे 0 बना दो, ये दोनों 1 1 को। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम ये रूल यूज कर चुके हैं। तो क्या रूल लगाऊंगा मैं? R2 goes to R2 minus R1, R3 goes to R3 minus R1। R1 मैं इस पूरे का यूज कर रहा हूं। नोट दिस स्टेप, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये कर लिया तो इसके बाद आपका 50% क्वेश्चन तो हो चुका है।
I am now waiting. Please apply this rule. इसे करने का और भी वे है. मैं R1 goes to R1 minus R2 कर सकता था. R2 goes to R2 minus R3 भी कर सकता था. So there are multiple ways. Generally, I will be following whatever is actually given in normally reference books and the marking scheme. जिस वे में बोर्ड की मार्किंग स्कीम में लिखा होता है उसमें इस तरह से सॉल्व करा जाता है, जबकि ऑल्टरनेटिवली और भी वे में मैं बिल्कुल कर सकता हूं. तो अभी आप सिर्फ इसी रूल को अप्लाई करिए. जब थोड़ा समझ आ जाए तब आप थोड़ा वेरिएट कर लेना. अभी इसी को लगाइए. वेरी फर्स्ट थिंग, R1 में कोई चेंज नहीं है और देयर इज अ रीजन. देखो मैं थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं बीच में आपस में. क्यों? क्योंकि जब मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा R2 goes to R2 minus R1, 1 minus 1 0. इधर कितना आ जाएगा? B minus A और इधर आ जाएगा B square minus A square. You need not to worry कि यहाँ B minus A है और आंसर में A minus B है. We can always take that negative sign common. Similarly, next R3 goes to R3 minus R1, 0. ये 1 minus 1 और इधर से क्या आ जाएगा? C minus A, C square minus A square. Now we have a simple observation. Let me write column 1 and column 2 as it is, और column 3 B square minus A square को फैक्टराइज कर दो. B minus A, B plus A और C square minus A square हो गया C minus A into C plus A. Taking B minus A and C minus A कहां से कॉमन लूंगा मैं? From row 2 and row 3 respectively. चेक इट आउट. क्या हुआ? मैंने रो 2 पे फोकस करा. दिस इज माय रो 2, हाईलाइटिंग विद ग्रीन कलर. रो 2 में से मैंने क्या कहा? B माइनस A कॉमन निकाल दो. याद रखिए 0 में से आप कुछ भी कॉमन कह सकते हैं, निकाल लिया. तो ये B माइनस A निकाला कॉमन और सिर्फ मेरा फोकस है रो 2 के ऊपर. तो यहां आ गया 0, 1 एंड B प्लस A. एंड C माइनस A कहां से? रो 3 से. दिस इज माय रो 3. इसमें से C माइनस A कॉमन निकाल दीजिए. 0, 1 एंड ये आ गया C प्लस A. अब आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ 0 0 आ चुके हैं, आप इसे डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं. तो हो सकता है क्वेश्चन की मेरी लैंग्वेज में कहीं पे कुछ रहा हो, बट अदरवाइज ये नहीं लिखा होगा. नॉर्मली प्रॉपर्टीज को ही यूज करके आपको प्रूव करना है, क्योंकि एक लास्ट स्टेप में तो एक्सपैंड करना ही रहेगा. अब आप या तो एक और प्रॉपर्टी लगा दो. वो क्या? R2 goes to
R2 माइनस R3, ये मुझे यहाँ पर ये 1 दिखा और ये 1 दिखा, 0 बना दिया, तो आई कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, बट दिस इज नॉट नाउ मैंडेटरी। अब अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर दें, डायरेक्ट एक्सपैंड किसके थ्रू, वाया फर्स्ट कॉलम, ये इसके अलोंग एक्सपैंड करा तो चेक करो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 इंटू इनका क्रॉस हो जाता है C प्लस ए, माइनस में आ गया B प्लस ए, so this is B minus A, C minus A, when you open the bracket A से A कैंसल हो रहा है। लुक केयरफुली, अब जो आपको आंसर निकालना था उसके लिए आपको एक छोटा सा चीज करना है, एक इसमें से माइनस बाहर निकाल दिया, आंसर में C माइनस ए एज इट इज था तो उसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, फिर इसमें से एक माइनस बाहर निकाल दिया, सो दैट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और A माइनस बी, फिर B माइनस सी पहले लिख दिया एंड देन C माइनस A, which is equal to your RHS, hence proved. I hope this is clear. चैट बॉक्स में अगर yes या no, अगर एक बार थोड़ा सा स्टूडेंट्स भी बता देते हैं, is this question clear, y और n? ओके ठीक है, अनन्या, दिव्या, चाहत, ओके लवेश, ठीक है, ओके प्रकृति, फाइन। I'm assuming that other students they are also clear with this. So this is the question for your homework. ना अभी तक किया, including try out this question in your homework. And I'm sure basic rule आप सब सोच सकते हैं। When you look at the LHS, दो चीजें बताई हैं, एक LHS जो प्रूव करना है उसमें देखो गोल्डन रूल, लोकेट 111, सेकेंड थिंग लुक एट द आंसर, और आंसर में मुझे एटलीस्ट ये वाले A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस ए दिख रहे हैं एज अ फैक्टर, तो आई हैव अ क्लियर कट आइडिया। एनीवन, क्या रूल लगाएंगे? पहली बात, रो में लगेगा या कॉलम में लगेगा? सबट्रैक्ट कुछ करना है? यस, एनीवन? ओके, कॉलम में, राइट। तो होमवर्क में आपको वैसे कंप्लीट करना है, बट एक बेसिक हिंट दे देता हूं, C1 goes to C1 minus C2, C2 goes to C2 minus C3, and as already mentioned, at the most in a single step you can apply only two changes. कई बार कोई ये कहे कि मैं C3 में कर देता हूं एक सिमेट्री से ये चीज, it will make the whole determinant as 0, तो ये valid नहीं है, only two operations simultaneously. So try out applying this operation in your homework, and if you are done आप WhatsApp ग्रुप पे अपना सॉल्यूशन शेयर कर सकते हैं। That's all for today. Ending the class now. Thank you, sir. Okay, thank you.